Hello everyone, welcome back to another video. This is the second video of this series. Actually it's the second day, it's 12th July or 11th July. I did that one, toxoplasmosis. 12th July I can't connect to the Wi-Fi network. You might want to check the connection settings in the Google Home app. 12th July we'll do another one. So there's 3 PDFs, May, June, March, April, and then there's July, August. So July, August we were doing Z staining was a practical, simple. That practical was for acid fast bacillus, in which we do the carbon fusion for, then we heat it intermittently for 7 minutes. After heating it, we make sure that it doesn't burn up. Intermittently 2 to 3 times we heat in the 7-minute period. Then we wash it. Then again we put H2SO4 20% for 15 seconds. Then again we wash it. Then we put the last final methylene blue stain, and then we keep it for like a minute or two. Then we heat it, like we dry it. After drying, we see the microscope in 100%, 100x oil immersion. So that was Zen staining basically, and it's been done. Zen staining is done. Okay, now we'll do the second part, that is toxoplasmosis. That's also we've done. That's today's lecture, Wednesday. You see the date on my iPad, it's saying Wednesday 12 July. But today we have, on Friday we have lecture called leishmaniasis and trypanosomiasis. Leishmaniasis and trypanosomiasis. So that we'll do today, leishmaniasis and trypanosomiasis. Okay, let's start it. So अपना PDF वही वाला है जो मैम का दिया हुआ है, leishmaniasis. I am late today. I woke up a little late. It's 5 o'clock in the morning. I should have woken up a little. So where is it? It's in blood and cardiovascular systems. But is it viral? No. Is it bacterial? No. It's parasitic. It's parasitic serious okay. So leishmaniasis and trypanosomiasis and malaria babiosis and lymphatic filariasis, all of these affect the CVS, and all of these are parasitic. Okay, leishmaniasis, filariasis, trypanosomiasis, and babiosis and malaria. So today we will do the visceral leishmaniasis and trypanosomiasis. It's on page number 360. Okay. Now, leishmaniasis and trypanosomiasis is a chapter, in chapter 36. Now, visceral leishmaniasis, we have Chagas disease and we have African sleeping sickness. Sleeping sickness we know, Sessefly, that one I think. Okay. So, hemoflagellates are the flagellated protozoa that are found in peripheral blood circulation. Examples include leishmaniasis and trypanosoma. These are what? Hemoflagellates. Both are transmitted by the bite of insect vector. They have an oval to elongated body, nucleus, and a single flagellum arising from the kinetoplast. Kinetoplast represents multiple copies of mitochondrial DNA. Kinetoplast represents, what's kinetoplast? It represents copies of multiple copies of mitochondrial DNA. The intracellular portion root of the flagellum is called as axoneme. I think they are talking about cell only. So hemoflagellates are what? These are flagellated protozoa. Hemoflagellates. Okay, so this chapter is basically hemoflagellates, and it has flagellated protozoa. Then फाउंड इन द पेरिफेरल ब्लड में मिलता है, सर्कुलेशन में. कहाँ पे मिलता है? पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में. एग्जाम्पल्स इंक्लूड लेishmaniana एंड trypanosoma. एग्जाम्पल्स इंक्लूड लेishmania एंड trypanosoma, जो दो अपने को पढ़ना भी है, leishmaniasis एंड trypanosoma. ठीक है. Both are transmitted by the insect vector. दोनों insect vectors होते हैं. They have oval to elongated body, nucleus, and a single flagellum rising from the kinetoplast, rise from the mitochondrial DNA kinetoplast. Okay. Then we have our
Based on the arrangement of flagellum, they exist in 4 morphological stages: amastygote form, promastygote form, epimastygote form and trypomastygote form. Amastygote form हो गया round to oval lax flagellum. Amastygote form हो गया round to oval lax flagellum. फिर क्या हो गया promastygote form, lanceolate shaped. Kinetoplast is anterior to nucleus and flagellum arises from the anterior end. Flagellum arises from the anterior end. Then we have epimastygote form. Elongated kinetoplast is placed close to nucleus. Where are the photos, bro? So पहले हो गया amastygote. इसमें क्या है? Oval to round lax flagellum. Amastygote में कुछ है ही नहीं. Then we have promastygote, which is lanceolate shaped. Okay, lanceolate shaped है. Kinetoplast is anterior to nucleus. Okay, दिख रहा है. न्यूक्लियस के एंटीरियर काइनेटोप्लास्ट. ओके, देन फ्लैजेलम अराइज एट द एंटीरियर एंड. फिर हो गया एपीमास्टिगोट. इसमें क्या है? इलोंगेटेड काइनेटोप्लास्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू न्यूक्लियस एंड फ्लैजेलम अराइजेस लैटरल साइड एंड ट्रांसवर्सेस द बॉडी एज अ शॉर्ट अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन एंड कम्स आउट एट द फ्रॉम द एंटीरियर एंड. ओके, शॉर्ट अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कम्स आउट एट द एंटीरियर एंड और काफ़ी नियर है न्यूक्लियस के, थोड़ा एंटीरियर है, बस लैटरली है, वो घूमता है और मेम्ब्रेन ही बनाता है. दिस वाज एपीमास्टिगोट. देन वी हैव trypomastigote. Elongated kinetoplast lies near the posterior end. Okay, here it's posterior, so only one में है kinetoplast posterior जो कि है trypomastigote. APET, apet. क्या ट्रिक है? apet. amastygote, promastygote, epimastygote और trypomastigote. amastygote, promastygote, epimastygote और trypomastigote. ठीक है. Alright, then next. In Leishmania and amastygote and promastygote forms are seen in Leishmania, amastygote and promastygote. कौन कौन सा? amastygote और promastygote. पहले दोनों किस में मिलते हैं? लेशमानिया में. ठीक है. एपेट में जो पहले दोनों हैं amastygote और promastygote, ये किस में मिलते हैं? लेशमानिया में. ठीक है. और फिर आते हैं promastygotes are infective to man and found in insect vector. प्रोमास्टिगोट जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज है. कौन सा? प्रोमास्टिगोट. ठीक है ना. नेक्स्ट चलते हैं आगे. आई थिंक डे हो गया. ट्राइपेनोसोमा में एपीमास्टिगोट और ट्राइपोमास्टिगोट मिलता है. ठीक है. ट्राइपेनोसोमा में एपीमास्टिगोट और ट्राइपोमास्टिगोट मिलते हैं. इन ह्यूमन ट्राइपेनोसोमल डाइजेस्टिव फॉर्म. ट्राइपेनोसोमा में ट्राइपोमास्टिगोट तो मिलेगा ही ऑब्वियसली, नाम ही है ट्राइपोमास्टिगोट, तो ट्राइपेनोसोमा मिलना चाहिए आई थिंक. In man, trypomastigotes are the digestive form. Insect vector, both epigotes are found, latter being the infective stage to man. Trypomastigotes होता है इसमें. ठीक है. और इसमें होता है प्रोमास्टिगोट, याद रखना. सो ET हो गया किसमें? ET हो गया ट्राइपेनोसोमा में. और यहाँ पे कौन है इन्फेक्टिव स्टेज? ट्राइपोमास्टिगोट. ठीक है. So promastigote and trypomastigotes are the most infective in both their cases. Epimastigote and promastigotes are found in Leishmania, or trypomastigote and epimastigote are found in trypanosoma. So trypanosoma में infective stage trypomastigote है. ठीक है, याद रखना. Okay, Leishmaniasis हो गया caused by obligatory intracellular protozoa of genus. Obligatory है. ठीक है. Protozoa और जीनस लेशमैनिया. लेशमैनियासिस होता है उससे. इंट्रासेल्युलर है ऑब्वियसली, विच प्राइमरली अफेक्ट्स द रेटिकुलो एंड कौन सा सिस्टम कर रही है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ द होस्ट. वेक्टर हो गया लेशमैनियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल सैंड फ्लाई वेक्टर्स. फीमेल सैंड फ्लाई मतलब सिसे फ्लाई, सॉरी सैंड फ्लाई है, याद रखना सैंड फ्लाई है. ठीक है. फीमेल सैंड फ्लाई. कौन सा सैंड फ्लाई? ओके, फीमेल सैंड फ्लाई देयर इज. Then आते हैं clinical forms में. Leishmaniasis present in various clinical forms. For example, visceral leishmaniasis, post Kala Azar dermal leishmaniasis. फिर हो गया cutaneous form occurs in various forms such as cutaneous leishmaniasis, diffuse cutaneous leishmaniasis, CL, DL, DCL, leishmaniasis recidivans and mucocutaneous leishmaniasis, MCL. So visceral leishmaniasis main हो गया. फिर क्या हो गया? पोस्ट काला आजार डर्मल लेशमैनियासिस. फिर क्या हो गया? क्यूटेनियस फॉर्म में
cutaneous leishmaniasis, diffuse cutaneous leishmaniasis, and leishmaniasis recidivans, and mucocutaneous leishmaniasis. Okay, subgenera हो गया. Leishmania has two subgenera, Leishmania L and Leishmania viana. Leishmania L is for L. leishmania and L. viana. Both of the subgenera composed of nearly 20 species. हर एक जनरा में 20 species अपने अपने में. So subgenera में हो गया L. leishmaniasis और L. leishmania और L. viana. फिर ये हर एक सबजेनरा में 20 अलग अलग होते हैं. फिर ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड में डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लेishmaniasis क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ओल्ड वर्ल्ड leishmaniasis and new world leishmaniasis. Old West leishmaniasis seen in Asia, Africa and less frequently in Europe, transmitted by sandfly of genus Phlebotomus. Okay, Phlebotomus एक इंसेक्ट है, ठीक है ना, याद रखना शायद. सो एशिया, अफ्रीका एंड लेस इन यूरोप. ओल्ड वर्ल्ड मतलब ओल्ड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, ठीक है. तो एशिया और अफ्रीका हो गया, ठीक है. ट्रांसमिटेड बाय सैंडफ्लाई ऑफ द जीनस फ्लेबोटोमस. सो एल डोनोवानी कॉजेस VL एंड PKDL. VL मतलब हो गया विसरल लेishmaniasis और PKDL मतलब हो गया पोस्ट काला आजार लेishmaniasis. तो ये दोनों मेन है, ठीक है. VL और PKDL जो है ये दोनों मेन, मतलब फोकस यहाँ पे रखना, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सब थोड़े छोटे हो गए, MCL टाइप्स. VL हो गया विसरल लेishmaniasis एंड PKDL हो गया पोस्ट काला आजार डर्मल लेishmaniasis, ठीक है. सो VLDL हो गया, VL और PKDL हो गया डोनोवानी. LL मतलब L. leishmania और एक L. viana है, ठीक है ना. तो LL का मतलब हुआ, तो L. leishmania डोनोवानी. फिर L. leishmania इन्फेंटम, L. leishmania ट्रोपिका कॉम्प्लेक्स हो गया कॉजेस CL. तो फ्रीक्वेंटली होता है एशिया अफ्रीका में, लेस फ्रीक्वेंटली इन यूरोप. फिर आते हैं न्यू वर्ल्ड leishmania. ये हो गया सीन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ट्रांसफर साउंडफ्लाई ऑफ जीनस लुट्जोमिया, ठीक है. LL चिगासी हो गया कॉजेस VL एंड CL. LL मैक्सिकाना कॉम्प्लेक्स हो गया कॉजेस CL का फुल फॉर्म क्या था? क्यूटेनियस लेishmaniasis. Cutaneous leishmaniasis, diffuse cutaneous leishmaniasis recidivans and mucocutaneous leishmaniasis, ठीक है. cutaneous, mucocutaneous, alright. और फिर क्या हो गया leishmaniasis recidivans. फिर आते हैं in Indian subcontinent leishmaniasis anthropophilic, affecting only humans, whereas in other parts of the world it is a zoonotic disease transmitted from various animals. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंथ्रोपोफिलिक है, अफेक्टिंग ओनली ह्यूमंस. अच्छा, ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं किसी ने. वेयरएज अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज अ जूनोटिक, मतलब बाकी देशों में एनिमल से रिलेशन होता है इसका. इंडिया में इट्स ओनली फॉर ह्यूमंस. ओके. विसरल leishmaniasis एंड PKDL आर डिस्कस हियर, क्योंकि यही दोनों तो पढ़ना ही है ना, और क्या बाकी दोनों CL, MCL वो सब क्यूटेनियस है, ठीक है. और काला आजार कहाँ है? पोस्ट काला आजार PKDL they have discussed. So post काला आजार डर्मल leishmaniasis एंड विसरल leishmaniasis दोनों पढ़ेंगे अपन. तो आते हैं विसरल leishmaniasis पे, जो कि पढ़ना है अपने को. ब्रो दिस इज सो बैड. क्या डिजीज है बहनचोद. ये तो वो लग रहा है वो कोई साउथ इंडियन मूवी थी जो हीरो वाला आई, ठीक है. विसरल leishmaniasis, ठीक है. Visceral leishmaniasis is mainly, thank you भगवान, is mainly caused by old world species L. donovani, L. infantum. कहाँ पे होता है? एशिया अफ्रीका में, क्योंकि ओल्ड वर्ल्ड है, ठीक है. और न्यू वर्ल्ड होता है कहाँ पे? साउथ अमेरिका. ऑलराइट. Together they known as L. donovani complex and also by new world species L. chagasi. Okay. क्या मतलब है इसका यार? L. donovani is the most common species causing VL, ठीक है. एक लाइन हो गया. फाउंड इन इंडिया अफ्रीका, पता है. नेम्ड आफ्टर सर विलियम लेशमैन एंड सर डोनोवन, who simultaneously contributed to the diversity of this parasite in a patient from Kolkata and Chennai respectively in the same year in 1903. अरे वाह, मतलब इंडियन है ऑब्वियसली. तो विलियम लेशमैन एंड सर डोनोवन, ये दोनों इंडियन पेशेंट्स कैलकाटा चेन्नई पे पता किए थे, ठीक है.
1903. Okay. The subsequent discussion in the chapter is confined to VL, visceral leishmaniasis due to L. donovani. Difference between from L1 VL due to L. infantum and L. chagasi is described in table 36.1. तो डिफरेंस क्या है किसमें, एल डोनोवानी और एल चिगासी में. एल इन्फेंटम डिफरेंसेस फ्रॉम वीएल ड्यू टू एल इन्फेंटम एंड एल चिगासी. Leishmaniasis is an endemic in 97 countries. Most of them are developing countries. It is an endemic. Okay. Tropical and temperate regions world, about 50 to 90,000 cases of VL occur worldwide each year. Out of 90% cases from 3 regions: Southeast Asia, India, Bangladesh, Nepal, East Africa, Ethiopia, Sudan, Kenya, Brazil. India is one of the worst affected country. 2019 3,103 and also PKDL have been reported from India with nil death. Maximum cases were reported from Bihar, 76% of VL and 52% of PKDL, followed by Jharkhand. अरे यार ये तो मतलब गरीबी है. ओके, सो सूडान, केन्या, इथियोपिया, बिहार. चलो ठीक है. ओके, लाइफ साइकिल हो गया लेशमैनिया डोनोवानी. लेशमैनिया डोनोवानी कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट. वर्टिब्रा होस्ट, इसमें क्या मैन, डॉग, रोडेंट्स एक्सेट्रा. इंटरवर्टिब्रेट होस्ट, फीमेल सैंडफ्लाई ऑफ जीनस फ्लेबोटोमस आर्जेंटिपिस. क्या बोल रहा है, एल डोनोवानी पढ़ रहे हैं हम लोग. ठीक है. कंप्लीट्स हिज लाइफ साइकिल इन टू होस्ट. वर्टिब्री होस्ट, मैन, डॉग, फ्लाई, रोडेंट्स एक्सेट्रा. इनवर्टिब्री होस्ट जैसे कि फीमेल सैंडफ्लाई ऑफ जीनस फ्लेबोटोमस आर्जेंटिपिस. इन्फेक्टिव फॉर्म प्रोमास्टिगोन फॉर्म्स. हाँ, प्रोमास्टिगोम और एपेट था ना, तो एमास्टिगोम और प्रोमास्टिगोम. ठीक है, याद रखना. सो प्रोमास्टिगोम फॉर्म्स फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फीमेल सैंडफ्लाई सर्व एज इन्फेक्टिव फॉर्म. पढ़ा है अपने को पता है ये बात. और फिर उसमें क्या था, उसमें था ट्राइपोमास्टिगोम. ठीक है. और प्रोमास्टिगोम कैसा था, एंटीरियर था और वो निकल रहा था एंटीकली फ्लैजिला भी. इन दोनों इसमें पोस्टीरियर था और बीच वाले में ये एपीमास्टिगोम में जस्ट सामने था लैटरली. वो एक एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन ही बना दे रहा था वह जो. चलो ठीक है. इन्फेक्टिव फॉर्म प्रोमास्टिगोम में डन. नेक्स्ट, कहाँ पे होता है ये, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फीमेल sandfly in infective form. Mode of transmission by the bite of infected female sandfly discharging promastigomes into skin of man. ठीक है. Man other host acquire infection by the bite of female sandfly. प्रोमास्टिगोम डिस्चार्ज करेगा स्किन के अंदर, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मैक्रोफेज में, ट्रांसफॉर्म करेगा स्किन मैक्रोफेज में. ठीक है. एमास्टिगोम में फिर एमास्टिगोम आर कैरिड इन सर्कुलेशन इन्वेड द. हाँ, आरईएस को ये आरईएस का माँ बहन एक करता, अपने को पता है. ये पूरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, आरईएस को. तो आरईएस का तो जो होगा वो होगा ही. सो स्किन में घुसा, फिर मैक्रोफेजेस में वो प्रोमास्टिगोम से एमास्टिगोम बन गया. एमास्टिगोम इज नॉट द इन्फेक्टिव स्टेज. इन्फेक्टिव स्टेज इज प्रोमास्टिगोम, जो कि क्या कहते हैं, एल डोनोवानी के वो में था, एलिमेंट्री कैनाल था. फिर वो बाइट किया इंसान को, स्किन में इंसान के घुस गया. एंड आफ्टर रीचिंग द स्किन ऑफ द ह्यूमन दे केम इनटू द मैक्रोफेजेस ऑफ द स्किन. सो स्किन मैक्रोफेजेस में वो फिर ट्रांसफॉर्म कर गया एमास्टिगोम और बन गया. और एमास्टिगोम फिर कैरिड इनटू द सर्कुलेशन इन्वेड्स द आरईएस. आरईएस इज नॉट व्हाट इज योर आरईएस. आरईएस मीन्स हियर अपना स्प्लीन और वो सब. ठीक है ना. सो इसको कहते क्या सिस्टम को, आरईएस का नाम क्या है, वेट लेट मी चेक. रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम. ठीक है. आरईएस वही स्प्लीन, लिम्फ नोड्स सारा. ठीक है. Okay, then sandfly takes up the emastigome while feeding on the infected host. So फिर से वो काटेगा infected host को,
तो अब वो ले लेगा एमास्टिगम और ये ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोमास्टिगम इन द गट, फिर प्रोमास्टिगम्स माइग्रेट टू द फोरगट और फिर मैन को फिर वो बाटे काटेगा। तो एमास्टिगम वापस लेती है, ठीक है, प्रोमास्टिगम वो देती है काटते वक्त और फिर जब फिर से काटेगा वो तो एल डोनोवानी में चला जाएगा एमास्टिगम और एमास्टिगम उसके गट से फिर फोरगट उसके में वो बन जाएगा प्रोमास्टिगम। ओके, इंसान में कहाँ बनता है? स्किन मैक्रोफेजेस में एमास्टिगम, ठीक है। एमास्टिगम वापस से वो ले लेगा जब वो वापस से काटेगा। ऑलराइट, आई थिंक दिस वन इज फाइन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ विसरल लेशमानियासिस एजेंट्स हो गया लेशमानिया डोनोवानी, यही पढ़ रहे हैं हम लोग। वेक्टर फ्लेबोटोमस आर्जेंटिपिस, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेबोटोमस आर्जेंटिपिस यही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेशमानिया डोनोवानी। ओके, इंडिया में होता है, यंग एडल्ट्स में होता है, एंथ्रोपोनोटिक होता है, कहने का मतलब ह्यूमन ही इसका सब कुछ है, एक मच्छर है एक इंसान है। बाकी इंडिया में इट्स मोनली अबाउट दिस, देयर इज नो इंटरमीडिएट, वी सीन दिस। ओके, सो रिजर्वायर हो गया ह्यूमन। फिर क्या हो गया? पीकेडीएल इज कॉमन और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट लेस कॉमन। पीकेडीएल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? पोस्ट कालाजार डर्मा लेशमैनियासिस, ठीक है, पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमैनियासिस, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट पे, ह्यूमंस प्रोमास्टिगम्स आर phagocytosed by the skin macrophages as they transform into amastigum forms. Amastigum forms multiply inside macrophages causing cell rupture, release into circulation. पढ़ रखा है हमने। Amastigoms are carried into circulation by various also like liver, spleen and bone marrow यानी RES, ठीक है ना, RES को इफेक्ट करता है and invade the reticular endothelial cells so like macrophages endothelial cell and sandfly during blood meal। जब वापस चलेगा तो amastigums and ingestion transformed into promastigums forms inside the skin cell which multiply and then migrate to the foregut। The cycle continues, sandfly bites a new host, ये चलते रहेगा। पैथोजेनिसिटी, वायरस फैक्टर कंट्रीब्यूट टू पैथोजेनेसिस ऑफ वीएल। वीएल कहने का मतलब क्या है? वीएल कहने का मतलब क्या है? या विसरल लेशमानियासिस, तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि फैगोसाइटोसिस फैसिलिटेटेड बाय बाइंडिंग टू सरफेस एंटीजन सच एज G63 ग्लाइकोप्रोटीन 63 एंड lipophosphogycan to specific receptors on the macrophages. LPG is the principal virulence factor, exhibits variety of functions, prevents phagosome maturation and protects the parasite against hydrolytic enzymes secreted from phagolysosome. Glycosyl phosphatidylate inositol is a major surface protein on amastigotes, help in protecting the phagolysosome attack inside the microsome. So GP63 सब कुछ बचा रहा है, ये खराब तो आपको जल्दी से हो जाएगा और लाइपोफॉस्फोग्लाइकन भी। फिर आते हैं होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स पे। डिपेंडिंग ऑन द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2 द एमास्टिगोट्स आर आइदर किल्ड और अलाउड टू मल्टीप्लाई इनसाइड द मैक्रोफेजेस। सो वही ये बता रहा है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है? स्प्लीनोमेगली होगा, हिपेटोमेगली होगा, लिम्फेडेनोपैथी होगा, पर ये डोनोवानी में थोड़ा कम है लिम्फेडेनोपैथी। ओके, इसमें ये कह रहे हैं लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट थोड़ा लेस कॉमन है। एनीवेज, LVVL इज ऑल्सो नोन एज काला आजार इन हिंदी टर्म मीनिंग ब्लैक फीवर। तो विसरल लिम्फेन क्या कहते हैं? विसरल लेशमैनियासिस को काला आजार भी कहते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 2 to 6 months। इंक्यूबेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 2 to 6 months। The hallmark of VL, visceral leishmaniasis, is a pentad of fever. Is a pentad of fever, progressive weight loss, hepatosplenomegaly, pancytopenia, hyper gamma globulinemia. Pentad of fever, progressive weight loss, fever, weight loss, hepatosplenomegaly, pancytopenia कहने का मतलब RBC, WBC प्लेटलेट तीनों कम होने चाहिए। पैनसाइटोपिनिया के बाद हो गया हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया, गामा ग्लोबिन बढ़ गया, ठीक है। फिर फीवर हो गया मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ वीएल, एब्रप्ट इन मोड ऑनसेट जो भी है, टिपिकल स्टार डबल और ट्रिपल राइज ओवर फीवर 24 आवर्स। हाइपर पिगमेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन फेस, हैंड, एब्डोमेन, हेंस नेम्ड काला आजार और ब्लैक फीवर। हाइपर पिगमेंटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि काला आजार, काला हो जाए सब। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आईवी, इंडियन आईवी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑलराइट, नेक्स्ट,
Pedal edema and ascites occur due to hypoalbuminemia, may be seen in advanced illness. Hypoalbuminemia, okay, may be seen in advanced illness. फिर हो गया mucosal lesions in mouth and nasopharynx seen in Sudan, rare in India. Mucosal lesions important नहीं है. Hematological abnormalities, pancytopenia, hyperglobulinemia due to polyclonal B cell activation. Hyperglobulinemia क्यों होता है? पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन के कारण होता है. फिर आते हैं लेशमानोमा, नोडुलर स्किन लीजन सीन इन अफ्रीकन केसेस ओनली. सो वो जो दिखा रखा है ना वो बड़ा सा, वो आगे फोटो आएगा. अदर फाइंडिंग्स इंक्लूड वेट लॉस एंड हेयर चेंजेस. अपने को क्या याद रखना है? हिपैटोस्प्लीनोमेगली, तो हिपैटोमेगली लिखा दो, स्प्लीनोमेगली लिखा दो. एक हो गया हिपैटोस्प्लीनोमेगली. फिर हो गया फीवर. फीवर में 24 घंटे में 2-3 गुना हो सकता है राइज, ठीक है. फीवर हो गया, हिपैटोस्प्लीनोमेगली हो गया. इसके अलावा इंडियन में हो गया अपना वेट लॉस हो गया. इसके अलावा हो गया पैनसाइटोपेनिया और हाइपरग्लोबिनेमिया. पैनसाइटोपेनिया और हाइपरग्लोबिनेमिया साथ में ले लो, फिर हिपैटोस्प्लीनोमेगली एक साथ ले लो, फिर फीवर एक जगह ले लो और वेट लॉस एक जगह ले लो. तो फीवर वेट लॉस हो गया, हिपैटोस्प्लीनोमेगली हो गया, फिर पैनसाइटोपेनिया हो गया और हाइपरग्लोबिनेमिया ब्लड में हो गया. तो ये दोनों ब्लड में, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पोस्ट काला आजार डर्मल लिशमैनियासिस. तो ये था ये था काला आजार. कौन? VL, विसरल लिशमैनियासिस. तो ये जो लिशमैनोमा था या जो भी था, ये सिर्फ अफ्रीकन में मिलता है. देखो, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लिशमैनियासिस, स्प्लीनोमेगली, विसरल लिशमैनियासिस, ठीक है. हाइपोपिगमेंटेड सीन, तो ये देखो स्प्लीनोमेगली हो रखा है ना, स्प्लीनोमेगली हो रखा है इसको. फिर देखते हैं हाइपोपिगमेंटेड स्किन, यानी एकदम वाइट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? चेंजेस इन द PKDL, अर्ली PKDL. एक्सटेंसिव फेशियल नोडुलर लीजन, ठीक है, इज सीन इन लेट PKDL. ओके, एक्सटेंसिव फेशियल नोडुलर लीजन. तो काला आजार में क्या होता है? काला हो जाता है बंदा इंडिया में, और वहाँ तो पूरा नोडुलर फेस ही हो जाता है, फेस के मावेन एक हो जाती है. फिर आते हैं ओक्यूलर लीजन्स लाइक कंजक्टिवाइटिस एंड यूवियाइटिस आर एसोसिएटेड इन सम पेशेंट. ओक्यूलर लीजन्स हो सकते हैं, मे बी समटाइम्स PKDL इज डायरेक्टली occur in subclinical patients without a history of VL. PKDL मतलब पोस्ट काला आजार लेशमैनियासिस कैन अकर विदाउट द हिस्ट्री ऑफ. अरे बाप रे, तो बहुत डेंजरस है. बिना, हो सकता है आपको कभी काला आजार हुआ भी नहीं हो, बट पोस्ट काला आजार लेशमैनियासिस हो सकता है. काला आजार मतलब लेशमैनियासिस, और पोस्ट काला आजार लेशमैनियासिस मतलब पोस्ट काला आजार लेशमैनियासिस. Sometimes PKDL can occur without subclinical cases of history. Reduction of AMAST diagnosis कैसा, very important. So what's the diagnosis, brother? अरे बहन, मोस्टली इन बिहार झारखंड है, ठीक है, याद रखना. ठीक है. डायग्नोसिस बाय डिटेक्शन ऑफ AMAST इन द नोडुलर लीजन्स एंड सेरोलॉजिकल टेस्ट सच एज डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड एंटीबॉडी और to KRK39 antigen positive in most cases. ठीक है. फिर PKDL in Indian subcontinent occurs in 2 to 20% of VL cases. 2 to 20% of VL, 2 से 20% ऑफ काला आजार में हो सकता है. ठीक है. Usually 2 to 10 years and persists for long periods, 20 years. It can affect any age group. Amphotericin B is a drug of choice given for 4 months. Amphotericin B is a drug of choice इन क्या PKDL. ओके, एम्फोटेरिसिन B याद रख लो. फिर आते हैं लेशमैनियासिस विद HIV को इन्फेक्शन, HIV के साथ. तो क्या है? HIV को इन्फेक्शन है इन मेनी कंट्रीज. यूरोप, हाँ, यही HIV होता रहता है. HIV sad to 70% people और 50 to 75% of VL are HIV positive and 7 to 17% of HIV infected people with fever have AMAST. It is also reported from other places like Africa, Ethiopia, Sudan, Brazil and India. Other places like Africa जैसे कि इथियोपिया, सूडान और क्या, ब्राज़ील, इंडिया. इंडिया में तो रिपोर्टेड इन बिहार में सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है. और सब हिमालयन रीजन, बिहार और झारखंड सबसे ज़्यादा होता है काला आजार. ठीक है. और कौन सा ड्रग लेते हैं? एम्फोटेरिसिन B. फिर आते हैं बोथ HIV एंड लेशमैनिया अफेक्ट ईच अदर्स पैथोजेनेसिस.
HIV और लेशमानिया होगा तो एक दूसरे के पैथोजेंस को अफेक्ट करेंगे। इफेक्ट ऑन HIV क्या हो रहा है, लेशमानिया क्या करेगा, अपीयर्स टू कॉज एक्टिवेशन ऑफ लैटेंट HIV, तो लैटेंट HIV को एक्टिवेट कर देगा कौन, लेशमानिया। एक्सप्रेसेस हाई लेवल ऑफ कीमोकाइन रिसेप्टर्स ऑन मैक्रोफेजेस, इफेक्ट ऑन लेशमानियासिस हो गया, HIV कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ T2 हेल्पर सेल्स रिस्पॉन्स लीडिंग टू डिजीज प्रोग्रेशन। फिर आते हैं आगे क्लिनिकल फीचर इन HIV को इन्फेक्टेड पेशेंट्स अपार्ट फ्रॉम द क्लासिकल फीचर्स ऑफ VL, अदर फॉर्म्स सच एज CL, MCL, PKDL, एटिपिकल प्रेजेंटेशन सच एज chronic diarrhea and pleural effusion may be observed, ठीक है। other forms such as CL, MCL, PVD, PKDL and atypical presentations such as chronic diarrhea and pleural effusion may be observed. Diagnosis, antibody reduction tests are also negative. Okay, बाप रे। A mastigotes are demonstrated from the unusual sites such as bronchoalveolar lavage fluid and buffy coat region of blood. फिर आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस हो गया, पहले माइक्रोस्कोपिक जेम्सा स्टेनिंग उसमें भी था पिछले वाले का नाम क्या था, ट्राइपेनोसोमा, उसमें भी जेम्सा स्टेनिंग यूज हो रहा था, ठीक है। डिटेक्ट्स LD बॉडीज दैट इज मैक्रोफेज फिल्ड ए मास्टिगोट फॉर्म्स, स्प्लेनिक एस्पिरेशन मोस्ट सेंसिटिव, बोन मैरो एस्पिरेशन मोस्ट कॉमन स्पेसिमेन, लिम्फ नोड एस्पिरेशन, liver biopsy, peripheral blood smear in HIV patients, and culture detects the promastigosis of species NNN medium, Schindler's liquid medium, NNN medium, ठीक है। फिर आता है एंटीबॉडी डिटेक्शन इन सीरम, एलिसा, ओके, RK39 इंपॉर्टेंट है, RK39 और RK16 एंटीजेंस, RKE16 और ICT हो गया, ठीक है। एंटीजन डिटेक्शन, कार्बोहाइड्रेट एंटीजन इन द यूरिन हो गया, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट एंटीजन इन द यूरिन हो गया, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। फिर आते हैं मॉलिक्यूलर मेथड है PCR, रियल टाइम PCR डिटेक्टिंग स्पेसिफिक काइनेटोप्लास्ट। रियल टाइम PCR में हो गया क्या, डिटेक्टिंग स्पेसिफिक काइनेटोप्लास्ट जो कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA, वाह पढ़ा हुआ ये भी सब। लेशमैन स्टेन, Montenegro टेस्ट इंडिकेट्स गुड CM-DTH रिएक्शन, पॉजिटिव इन ऑल स्टेजेस एक्सेप्ट एक्टिव VL एंड डिफ्यूज CL, ठीक है। अब आता है एनिमल ओक्यूलेशन में हो गया, गोल्डन हैमस्टर में करते हैं। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट टू डिटेक्ट में हो गया, हाइपर गामा ग्लोबिनिमिया बाय नेपियर्स एल्डिहाइड टेस्ट एंड चोपड़ाज एंटीमोनी टेस्ट और नेपियर्स एल्डिहाइड टेस्ट। पैनसाइटोपेनिया बाय कंप्लीट ब्लड काउंट। लैब डायग्नोसिस इन द एपिडेमिक एरिया, केस फीवर मोर देन 2 weeks, splenomegaly and or weight loss suspected having VI should be subjected to lab confirmation. Microscopy, leishmania dono-1 bodies कहाँ मिलेगा, मैक्रोफेजेस में। तो अपने को पता है इसका ट्रीटमेंट क्या था, पेंटा, मिफिल्टोसिन, तो ओके, एम्फोटेरिसिन बी और क्या है, मिल्टेफोसिन, एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी देते हैं, याद रखना। माइक्रोस्कोपी में हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ए मास्टिगोट्स इनसाइड द macrophages also known as leishmania dono-1 bodies, LD bodies. It is the gold standard method for diagnosis of VL, कौन, leishmania dono-1 bodies, gold standard यही है। Smears and to be blurred with leishma, Gizmo or right stains. The virus samples include splenic aspiration, bone marrow aspiration, lymph node aspiration, liver biopsy, peripheral blood and biopsy specimen of सब में leishmania dono-1 मिलेगा। कहाँ पे, मैक्रोफेजेस में घुसा रहता है ये। ऑलराइट, चलो ठीक है। leishmania dono investigation macrophage schematic and bone marrow present. Note that each investigote has a nucleus. Okay.
एंड रॉड शेप कैनेटोप्लास्ट कल्चर में हो गया क्या, यूजफुल स्पेसिमेंस आर एस्पिरेशन फ्रॉम स्प्लीन, बोन मैरो एंड बफे कोट, NNN मीडियम और शिंडलर्स ड्रोसोफिला इंसेक्ट मीडियम कैन बी यूज कल्चर में, NNN मीडियम और शिंडलर्स मीडियम। फिर आते हैं अपना एंटीबॉडी डिटेक्शन में फॉर डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट और इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। ICT डायरेक्ट लेशमानियन एंटीबॉडीज यूजिंग L-Chagasi रिकॉम्बिनेंट काइनेसिन एंटीजन जो कि है RK39। और जो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट है इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है L-Donovani एमास्टिगोट ऑन द माइक्रोडाइटर प्लेट एंड इनक्यूबेटेड फॉर 18 hours। बटन फॉर्मेशन इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज। फिर क्या है, लेप्रेसी, Chagas disease, CL। So false positive test may occur due to cross-reacting antibodies present in leprosy and Chagas disease। लेशमानिया डोनोवन क्या है, गोल्ड है, यहाँ पे गोल्ड नहीं है ये सब, लेप्रेसी, चागस और CL गोल्ड नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, सीरियल डाइल्यूशन ऑफ पेशेंट सीरम इज एडेड विद स्टेन एक्सट्रैक्ट ऑफ L-Donovani एमास्टिगोट on microtiter plate and incubated for 18 hours. If specific antibodies are present, agglutination is visible by naked eyes. Button formation indicates the absence of antibodies. Button formation indicates absence of antibodies. तो बटन दिख रहा है मतलब एंटीबॉडी नहीं है। और मैट दिख रहा है, it is found to be 100% sensitive and specific. It is simple, rapid and does not need any instrument. Disadvantage क्या, however, antibodies persist up to 5 years after treatment, ठीक है। और क्या, immunochromatografic test detects leishmania antibody by using L-Chagasi recombinant kinesin जो कि है RK39। तो इसीलिए L-Chagasi हो गया तो गए तुम, वही फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। Claims 100% sensitivity and 95% specificity. However, sensitivity is low in East Africa HIV patients. It's too much यार, why is micro too much? फिर आते हैं लेशमानियन टेस्ट हो गया, Montenegro टेस्ट, स्किन टेस्ट to detect delayed hypersensitivity to a specific suspension of killed Donovani। ये भी एक लग रहा है important है शायद। प्रिटी श्योर लेशमानियासिस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है शायद, पता नहीं क्यों, बट आई थिंक सो। द वेरियस ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ दिस आर पेंटावैलेंट एंटीमोनियल्स, ठीक है। फिर क्या है, एम्फोटेरिसिन बी, और क्या है, मिल्टेफोसन एंड पारोमोसिन। The WHO recommended regimens used for the treatment of VL is used in the table 36.2। Okay, WHO क्या कहते हैं, WHO recommended regimens used for the treatment of VL। क्या क्या करते हैं हम लोग VL के वो के लिए, WHO वो बोलता है, ठीक है। बाकी टेस्ट तो हो गए, बट टेस्ट रिवाइज कर लेते हैं अपन। टेस्ट काफ़ी ज़्यादा थे यार, माइक्रोस्कोपी में जो भी है। लैब डायग्नोसिस के लिए लेशमानिया डोनोवानी बॉडीज, LD बॉडीज सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, गोल्ड स्टैंडर्ड। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, स्प्लीनिक एस्पिरेशन, बोन मैरो एस्पिरेशन, लीफ नोड एस्पिरेशन, लीवर बायोप्सी, पेरिफेरल ब्लड, और उसमें HIV के लिए, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर के लिए, और बायोप्सी में भी HIV के लिए। कल्चर में हो गया NNN मीडियम और शिंडलर्स मीडियम। फिर आते हैं आगे, एंटीबॉडी डिटेक्शन में हो गया ELISA, RK39 और RKE16 में, वो दोनों ICT इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट में हो गया RK39 और RKE16, ओके। देन फिर आगे आते हैं कार्बोहाइड्रेट एंटीजन इन यूरिन में हो गया एंटीजन डिटेक्शन में लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। फिर मॉलिक्यूलर मेथड में PCR में डिटेक्टिंग PCR काइनेटोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रियल DNA लेशमैन टेस्ट हो गया मोंटेगोरो टेस्ट। इंडिकेट्स गुड CMI DTH रिएक्शन पॉजिटिव इन ऑल स्टेज एक्सेप्ट एक्टिव VL एंड डिफ्यूज CL, पॉजिटिव इन ऑल स्टेज एक्सेप्ट एक्टिव VL एंड डिफ्यूज CL। एनिमल इनोकुलेशन में हो गया गोल्डन हैमस्टर। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट टू डिटेक्ट में हो गया क्या, हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया बाई नेपियर एल्डिहाइड टेस्ट एंड चोपरास एंड एंटीमोनिटेस एंड पैनसाइटोपिनिया, ठीक है। और ट्रीटमेंट में आ जाते हैं एम्फोटेरिन बी, मिल्फेडोसिन, पारोमाइसिन,
एम्फोटेरिसिन बी, पारोमाइसिन, मिफल्टोसन, फिर क्या हो गया पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स, चलो ठीक है डन करते हैं आगे। फिर आता है पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स, इट हैज़ बीन अ ड्रग ऑफ चॉइस एंड वाइडली यूज्ड इन पास्ट फॉर सेवरल डिकेड्स। However, as the resistance has been emerged, currently it is used restricted to regions where resistance has not yet been developed. However, as resistance has been emerged, currently its use is restricted to regions where resistance has not yet been developed. Pentavalent antimonials, it has been a drug of choice and widely used in the past for several decades. However, as the resistance has been emerged, currently its use is restricted to regions रेजिस्टेंस हैज़ नॉट बीन डेवलप्ड। तो पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ चुका है अब, तो ये सिर्फ वही जगह पे यूज़ कर रहे हैं आजकल जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। डोसेज गिवन 20 mg per kg per day, intramuscular or intravenous for 30 days. Mechanism of action is converted to active trivalent form in body. पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स पेंटावेलेंट फॉर्म में एक्टिव नहीं होते, ट्राईवेलेंट फॉर्म में एक्टिव होते हैं। सो मैकेनिज्म क्या है, दिए और फिर वो एक्टिव फॉर्म ट्राईवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं। रेजिस्टेंस टू एंटीमोनियल्स हैज़ बीन रिपोर्टेड मोस्टली इन बिहार, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है एंटीमोनियल्स, तो एंटीमोनियल्स बिहार में हो सकता है। तो फिर क्या यूज़ करेंगे, एम्फोटेरिसिन बी, तो बिहार में आप यूज़ नहीं करते, रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। फिर आते हैं लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी हैज़ बीन current use of drug of choice for leishmaniasis, especially in areas of resistance to antimonials has been reported. Dosage हो गया given 3 to 5 mg per kg by IV infusion for 3 to 5 days. Total dose of 15 mg per day kilogram. Mechanism of action acts by disrupting the cell membrane by forming pores. फिर आते हैं मिल्टेफोसन, डोसेज हो गया गिवन 150 mg per day orally for 28 days. Mechanism of action by interacting with lipids inhibiting cytochrome C oxidase. तो मिल्टेफोसिन कैसे काम कर रहा है, इंटरेक्टिंग विद लिपिड्स इनहिबिटिंग साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। रेजिस्टेंस में रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया नेपाल। ओके, पारोमोमाइसिन इज aminoglycoside antibiotic with anti-leishmanial activity. It is given intramuscular at a dose of 15 mg per day for 21 days. और इम्यूनोथेरेपी भी हो गया। फिर इंटरफेरॉन गामा हैज़ बीन यूज्ड इन antibiotics selected relapse cases from Kenya, Brazil, India. Prevention of VL, National Vector-Borne Disease Control Program, National Vector-Borne Disease Control Program, NVBDCP is a national program in India which works for the control of 6 common vector-borne diseases in India. Launched the accelerated plan for Kala Azar elimination in 2017. Target is to reduce annual patient per 10K. The block animals are classified into 4 categories based on annual incidence of Kala Azar each year. Okay, category 1, category 2, 3, 4. चलो ठीक है, तो ये था लेशमैनियोसिस। लेशमैनियोसिस यानी काला आजार। चलो, और लेशमैनियोसिस में भी 3 टाइप के हो गए, विसरल लेशमैनियोसिस, फिर क्या था पोस्ट काला आजार लेशमैनियोसिस, फिर क्या था बाकी के, यानी जैसे MCL, CL, वो सब MCL, CL, DCL, लेशमैनियोसिस हो गया। और ड्रग्स याद रखना पड़ेगा, पेंटावेलेंट क्या था, पेंटावेलेंट अमाइनो, पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स, फिर एम्फोटेरिसिन बी, फिर मिल्टेफोसिन, ठीक है, फिर पारोमाइसिन एंड इम्यूनोथेरेपी। फिर आता है ट्राइपेनोसोमिया। ट्राइपेनोसोमा के बाद अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, थोड़ा थोड़ा है, इट्स गोना टेक अ लिटिल मोर टाइम। Let's continue. Trypanosomes are hemoflagellus. Yes, exactly. Parasites जिसमें hemoflagellus है. Reside in peripheral blood tissue of the host cells. वो वाला obligate था, इंट्रासेलुलर था, ये कहाँ है, ये पेरिफेरल ब्लड में, वो था इंट्रासेलुलर, ठीक है। लेशमैनियोसिस इंट्रासेलुलर मैक्रोफेजेस के अंदर आ जाते हैं। Tissues of the host cells based on the geographical distribution, these are classified in 2 types: African trypanosomosis and American. So Trypanosoma brucei complex are the transmitted vector by Sesefly. They cause African sleeping sickness. So African sleeping sickness हो गया African trypanosomus, ठीक है। फिर हो गया African American Trypanosoma cruzi, which is called Chagas disease, transmitted insect vector called redwood bug
ऑल्सो कॉल्ड ट्राइटोमाइन बग। फिर आते चागास डिजीज, ये अफ्रीकन है, ओके नहीं ये अमेरिकन है। चागास डिजीज अमेरिकन एंड अमेरिकन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज अफ्रीकन। सो चागास डिजीज कहाँ होता है? यूएस में। चागास डिजीज रिस्ट्रिक्टेड टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला। Currently estimated at 16 to 18 million people are affected by T. cruzi. Annual incidence 21 lakh and new cases with 50,000 deaths. बाप रे। Zoonotic disease with many animals as well like dogs and cats. T. cruzi, बाप रे। Okay, life cycle. T. cruzi is transmitted to man by rubbing of its vector Redovid bugs feces on the abraded skin. कौन सा हो गया? Redovid bugs feces on abraded skin. Human cycle. Trypomastigotes from the bite wound are carried to the various tissues where they transform into amastigote forms. Amastigotes multiply actively. They are intracellular form found in tissues such as reticuloendothelial cells, spleen, liver, lymph node and bone marrow. Muscles हो गया जैसे कि cardiac, skeletal, GI and nervous tissue. Trypomastigotes हो गया amastigotes transform back to trypomastigote forms, which are motile, sheep-shaped, non-multiplying extracellular forms found in peripheral blood as long, slender or invasive forms and short, stubby forms. Invasive forms migrate to many organs and short, stubby forms are ingested by Redovid bugs during a blood meal. Vector cycle हो गया. It is the GERD of Redovid bugs. The trypomastigotes transform into epimastigotes, which further develop into metacyclic trypomastigotes in hindgut and are excreted in the bug's feces. ठीक है. Pathogenesis and clinical feature. Chagas disease occurs in 4 stages. Early stage disease, acute Chagas disease, indeterminate stage and chronic Chagas disease. Early Chagas disease, it is characterized by cutaneous and ocular manifestations. Cutaneous and ocular. Chagoma. It forms a painful subcutaneous nodule at the site of deposition of bug species, commonly seen on face. Romana sign causes unilateral painless edema of the upper eyelid and conjunctivitis. तो क्या है? ocular and cutaneous manifestation. Chagoma दिखेगा और रोमाना साइन दिखेगा जो कि पेनलेस एडिमा ऑफ द अपर eyelid and conjunctivitis. फिर हो गया acute Chagas disease. About 1% of the patient progress to acute stage disease, characterized by fever, hepatosplenomegaly, lymphadenopathy. Indeterminate stage. It is a asymptomatic phase lasting for years to decades before progressing into symptomatic chronic stage. फिर क्या है? Chronic Chagas disease. The parasite multiplies in the muscles, cardiac and GIT and nervous tissue, producing various types of manifestation. Cardiac form occurs in about 30% patient mostly dilated. Cardiomyopathy, rhythm disturbances and thromboembolism. GI form, for example, megaesophageal and megacolon. Autoimmune hypothesis, T. cruzi antigens cross the react with the mammalian antigens, molecular mimicry producing autoantibodies which may be responsible for tissue injury seen in chronic Chagas disease. फिर आते हैं अफ्रीकन सिकनेस. किससे होता है? ये होता है टी ब्रूसाई गैम्बियन से और टी ब्रूसाई रोडियंस से. चलो ठीक है, अब एमसीक्यू बनाएंगे अपन. ठीक है. वेक्टर फॉर लेशमैनियासिस का वेक्टर क्या है? सैंड फ्लाई होगा और क्या? मार के देख ही लेते क्या होता है. Amastigote form of Leishmania donovani resides in the GI tract of insect. वेक्टर गलत. सेल्स ऑफ रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल्स होगा और क्या? ठीक है. लेशमानिया डोनोवानी कैन बी कल्टिवेटेड इन मीडियम. और एक और क्या था? चलो मीडियम याद है. अमेरिकन इज कॉज्ड बाय. अमेरिकन वाला मतलब वो वाला. ठीक है. तो वो टी क्रूजाई होगा ना शायद. अमेरिका चागास डिजीज किसे होता है? टी क्रूजाई से होता होगा. तो हमारा आंसर आ रहा है ACBC. भैंचर सही है सब. ये पहाड़ी 4 MCQ सही है. चलो बाय भाई. देखो यार, आई थिंक थोड़ा सा लास्ट के 3 पेजेस में आई मीन
ये हो गया, बट चागस डिजीज का पहला करो लाइफ साइकिल, वो इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनेसिस क्लिनिकल फीचर हो गया। ड्रग व्रग क्यों ही याद करें, इंडिया में तो होता नहीं है ना, क्यों पढ़े। और दिया भी बुक में 2-2 पेज ही है दोनों पे। तो अक्यूट क्रोनिक स्टेजेस याद कर लो, टी क्रूजा याद कर लो, और इसका भी देखो मैम ने भी मार्क सिर्फ वहीं पे किया है जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट में सिर्फ ये देखा है। तो टी ब्रूसेरा रोडियंसिसी और टी ब्रूसेरा गैम्बिसिसी, ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और ये दोनों क्या है, किसके एग्जांपल है, ट्राइपेनोसोमिसिस। ट्राइपेनोसोमिसिस के 2 टाइप्स हो सकते हैं, अमेरिका, अफ्रीका। अमेरिका में होता है क्या, क्रूजाई, और अफ्रीका में होता है क्या, गैम्बिसी और ब्रूसेरा गैम्बिसी और ब्रूसेरा रोडिस, ठीक है। आई थिंक ये ठीक है, 50 मिनट्स हो गए। थोड़ा पेजेस का लास्ट के 4 पेजेस, आई मीन चलो ठीक है आई गेस। 2 3 4 5 6 7 8 9 4 सेम। आई डोंट थिंक 10 मिनट से ज़्यादा। तो अगर हमने देखा था कि 9 पेजेस कर रखा है हमने, जिसमें से 7 प्रॉपरली किया है और अंतिम 2-3 थोड़ा, तो ऊपर एमसीक्यू भी ठीक है, मतलब कुछ तो समझ में आया है ज़्यादा, ठीक है। काइनेटोप्लास्ट, टैक्सोनी, माइटोकॉन्ड्रियल याद रखना। लेशमैनियोसिस बहुत अच्छे से करना। काला आजार इज इम्पॉर्टेंट, बिहार झारखंड। ओके बाय, डन।